الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، وہ تاجدار ختم نبوت ہیں، خاتم النبیین کا صحرا انہی کے سر پہ اللہ نے سجایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد رحمتیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد رحمتیں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر ہوں۔ محترم ناظرین، یوٹیوب چینل پر آج آپ کے لیے بہت خوبصورت عمل مبارک لے کے آیا ہوں۔ یہ مصیبت کا پہاڑ ہو، یعنی پہاڑ جیسی مصیبت انسان کے اوپر ہو تو اس مصیبت کو دور فرما دینے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا وظیفہ مبارک آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ایسا وظیفہ مبارک جو بہت ہی قوی الاثر ہے، بہت ہی مجرب، بڑا آزمودہ اور بہت ہی لاجواب ہے۔ یہ وظیفہ مبارک، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ایسے کمال کا وظیفہ ہے جو آپ کے اوپر ہر طرح کی آنے والی پریشانیوں کو، مصیبتوں کے پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دور فرما دیں گے۔ یہ ایسا وظیفہ مبارک ہے، مشکلات کے چنگل میں آپ پھنس گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مشکلات کا چنگل ختم ہو جائے گا۔ ایسا وظیفہ مبارک ہے جو پریشانیوں کے جنگل میں پھنس گیا، رستہ نہیں مل رہا، کس طرف جاؤں، کیا کروں، کوئی دروازہ کھل نہیں رہا، اس کے لیے یہ ایسا تیر بہدف وظیفہ مبارک ہے جو اس وظیفہ مبارک کو کرے گا، رب تعالیٰ اس کو ہر طرف سے رستہ عطا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے خوشحال فرما دیں گے، اس کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے، بلکہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرما دیں گے، اس کا افلاس دور ہو جائے گا، غربت دور ہو جائے گی، جس مشکل کے لیے بھی اس کو پڑھیں گے وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ وظیفہ مبارک ناظرین آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ کو وظیفہ مبارک بتاؤں، آپ اس کو توجہ سے سنیے گا، پوری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کہیں سے سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ پھر کوئی بات رہ جاتی ہے اور آپ فون پر اور کمنٹس کے اندر پھر لگاتار لگے رہتے ہیں کہ جی کو وظیفہ مبارک کیسے کرنا ہے۔ آپ اس وظیفہ مبارک کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اتنا لاجواب اور اتنا بابرکت اور اتنا باکمال وظیفہ ہے جو شاید آپ نے اپنی زندگی کے اندر کیا ہو۔ یہ زندگی کے اندر آپ کریں گے، مایوسیاں ختم ہو جائیں گی، مشکلیں دور ہو جائیں گی، مشکلیں ختم ہو جائیں گی، مایوسیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی غربت افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں، انشاءاللہ خوشحال ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خوشیاں نصیب ہوں گی آپ کو۔ ناظرین کرام، وظیفہ مبارک کیا ہے؟ وہ وظیفہ مبارک جو کوئی اس سورہ مبارک کو، یہ سورہ مبارک آپ سب کو الحمدللہ اس کا نام کا پتہ ہے سورہ مزمل شریف۔ سورہ مزمل شریف ایسی کمال کا وظیفہ ہے، ایسا لاجواب کے بعد سونے سے پہلے سورہ مزمل شریف 11 مرتبہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو دینی دنیاوی معاملات کے لیے اتنی مجرب ہے جتنا کوئی اور وظیفہ مجرب نہیں ہے، بہت کمال کی۔ اور اسی طرح سورہ مزمل شریف فراخی رزق کے لیے ایک ایسا مشائخ کا بتلایا ہوا عمل مبارک ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتوں میں
इशा के बाद 2 रकतों में 41 मरतबा अगर आप सूरह मुजम्मल शरीफ को पढ़ लेते हैं, 41 मरतबा, इस तरह कि रकत के अव्वल में सूरह फातिहा शरीफ के बाद आपने इसको तरतीब बनानी है। यह तरीका तवज्जो से आप सुन लें। रकते अव्वल में पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 21 मरतबा और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 20 मरतबा सूरह मुजम्मल शरीफ पढ़ लें। अगर रोज़ाना बावजू 11 मरतबा सूरत मुजम्मल शरीफ पढ़कर बीमार पर दम करते रहेंगे तो अल्लाह के हुक्म से बीमार शिफा हो जाएगा, बीमार को तंदुरुस्ती हासिल हो जाएगी, सेहत याबी मिल जाएगी। और अगर मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी है, इख्तलाफ है, तो सूरह मुजम्मल शरीफ 21 मरतबा पढ़कर किसी मीठी चीज़ पर दम करके खिला दे, इंशाल्लाह दोनों में बाहमी उल्फत पैदा हो जाएगी, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अगर मियाँ बीवी आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, इख्तलाफात रहते हैं, नचाकियाँ रहती हैं, घर की फ़ज़ा सोगवार रहती है, घर की फ़ज़ा ख़राब रहती है, घर की फ़ज़ा बदबूदार हो जाती है। ज़ाहिर है मियाँ बीवी की लड़ाई जो है वो अच्छे हालात तो नहीं ना बनाती। तो इंशाअल्लाह उनकी बाहमी उल्फत के लिए आप 21 मरतबा सूरह मुजम्मल शरीफ को पढ़कर किसी मीठी चीज़ पे दम करके, शरीनी पर दम कर लें, मिठाई पे दम कर लें, दूध पे दम कर लें, आप शहद पे दम कर लें, और वो शहद चाय में, दूध में, और इस तरह आप कोई और चीज़ मशरूब बनाते हैं उसके अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। जामे शीरीं पे पढ़ लें, रूह अफ़ज़ा पे पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला वो दोनों मियाँ बीवी पिएं, ताकि दोनों में बाहमी उल्फत पैदा हो, बाहमी मोहब्बत पैदा हो। और एक तरीका सूरह मुजम्मल शरीफ के पढ़ने का ये भी है कि बाद नमाज फजर 6 मरतबा, बाद नमाज ज़ोहर 7 मरतबा, बाद नमाज असर 8 मरतबा, बाद नमाज मगरिब 9 मरतबा और बाद नमाज इशा 11 मरतबा, 11 मरतबा आप सूरह मुजम्मल शरीफ पढ़ें। याद रखिए, मगरिब के बाद 9 मरतबा और इशा के बाद 11 मरतबा, 10 मरतबा नहीं, 11 मरतबा सूरह मुजम्मल शरीफ आपने पढ़नी है। अल्लाह के हुक्म से हर मुश्किल आपकी आसान हो जाएगी। अगर अव्वल आखिर दरूद पाक को 3-3 मरतबा पढ़ लें और दरमियान में 41 मरतबा सूरत मुजम्मल शरीफ पढ़ लें तो अल्लाह ताला दौलत से माला माल फरमा देंगे, आपके ऊपर दौलत की बारिश बरसाएंगे अल्लाह तबारक व तआला, और मुसीबत से आप अमन में, सुकून में रहेंगे। कोई मुसीबत आ जाए, नागहानी आफातो बलियात आ जाएं, इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से उन मसाइब और मुश्किलात और नागहानी आफातो बलियात से महफूज रहेंगे। एक अल्लाह वाले ने लिखा है कि 41 दिन तक 41 मरतबा, 41 दिन तक 41 मरतबा मुजम्मल शरीफ को आप पढ़ें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी की खुशियों के लिए ये किफ़ायत करेगी। और फिर मेरे शेख कामिल, मुर्शद कामिल, आफ्ताब विलायत, हुज्जतुल इस्लाम, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मुफस्सिर कुरान, शेखुल हदीस, रोज़ाना इशा की नमाज के बाद 141 मरतबा मुजम्मल शरीफ पढ़ने का अमल इरशाद फरमाते थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, जिन्होंने इस अमल को किया है पूरे इखलास के साथ, पूरे यकीन के साथ। यकीन बहुत ज़रूरी है, ये यकीन की दौलत लाज़िमन आपके दामन में होनी चाहिए। अगर यकीन नहीं तो बेड़ा पार नहीं होगा। तो हमने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी शख्सियत बड़ी मुस्तजाब दावात थी, जो दुआ आप फरमाते थे रब की बारगाह में मकबूल व मंजूर जल्दी हो जाया करती थी। आप सरकार 141 मरतबा सूरह मुजम्मल शरीफ का चिल्ला करवाते थे, और जिन जिन लोगों ने किया है फैज़ान से उनके घर मुनव्वर हो गए हैं। आइए 41 दिन तक मुजम्मल शरीफ का एक और वजीफ़ा आपको बताऊं। 41 दिन तक 41 बार, फिर 41 दिन तक 21 बार, और फिर ज़िंदगी भर के लिए 11 मरतबा का मामूल बना लें। आगाज़ नौचंदी जुमेरात से करें। जो लोग आमिल हैं, अमलियात का शौक़ रखते हैं और आलिम हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे पास कोई रूहानी ताकत और रूहानी हथियार हो, वो इस अमल को ज़रूर जारी करें। मैं उनको इजाज़त देता हूँ। कमेंट्स बॉक्स में आकर आप माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर लिखें, अपना नाम लिखें,
अपने सिटी का नाम लिखें, वालिदैन का नाम लिखें। इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल इजाज़त के साथ ये अमल बख्शिश किया जा रहा है। आपने 41 दिन तक 41 मरतबा, एक चिल्ला हो गया, फिर दूसरा चिल्ला 41 दिन तक 21 मरतबा, इसके बाद ये चिल्ला आपका मुकम्मल। और फिर रोज़ाना का मामूल अपनी हाज़िरी हाथ में रखने के लिए, यानी उस अमल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपने रोज़ाना 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ ये पढ़ा करनी है, मामूल बनाना है। और इसका आगाज़ नौचंदी जुमेरात से करना है। नौचंदी जुमेरात कहते हैं चांद की पहली जुमेरात। इंशाअल्लाह ताला तवंगरी नसीब होगी, गना नसीब होगा, और कशिश रिज़्क़ के लिए ये वजीफ़ा मुबारक इतना ज़बरदस्त है। वजीफ़ों का बादशाह है, वजीफ़ों का सरदार है, वजीफ़ों का सरबराह है, वजीफ़ों का सरदार है, वजीफ़ों का नवाब है, वजीफ़ों का सुल्तान है। ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है, और इसको कशिश रिज़्क़ के लिए, फरावानी नेमत के लिए, ये बड़ा ही मुजर्रब और कमाल का है। अब हम चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल इंतहाई ताकतों का हामिल है। बहुत बड़ी ताकतें हैं इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा आज़मूदा अमल है। जो लोग परेशान हैं, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, और जिनकी दुआएं वो समझते हैं कि ज़ाया हो रही हैं, जिनके मकसद पूरे नहीं हो रहे, ये अमल आप ज़िंदगी में ज़रूर एक बार करके देखें। और मकसद का जायज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मकसद जायज़ नहीं होगा तो वो मकसद पूरा नहीं होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, नापाक इरादे कभी पूरे नहीं हुआ करते। इसलिए आपको बार बार कह रहा हूं कि अपने मकसद को जायज़ होना ज़रूरी है, और ऐसा मकसद जिससे किसी को नुकसान ना हो, मखलूक खुदा का भला हो, मखलूक खुदा को नुकसान ना पहुंचे, ये आपने करना है। और ऐसा मकसद कभी भी पूरा नहीं होता, इसलिए आपको बार बार मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं। सूरह मुज़म्मिल शरीफ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी महबूब सूरत है। अब चलते हैं अपने वजीफे की तरतीब की तरफ। ये कैसे करना है? तो इस अमल को आपने सिर्फ नमाज फजर के बाद ही करना है। इस अमल के लिए 5 वक्त की नमाज लाजमी है। फजर की नमाज अदा करने के बाद आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ को एक बार पढ़ें, लेकिन आपने इसको इसके तरीके से पढ़ना है कि जब आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ शुरू करते हैं, और जब आप रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला इस आयत मुबारका पर पहुंचते हैं, तो इस आयत को आपने 3 मरतबा रिपीट करना है, दोहराना है, और अपने ज़हन में अपने मकसद को रखना है। इस आयत को 3 मरतबा आप पढ़ने के बाद फिर अपनी सूरह मुज़म्मिल शरीफ को आगे शुरू करना है। और जब आप पहुंचे इस जगह पर वल्लाहु युक़द्दिरुल लैल वन नहार, इस आयत को भी आपने 3 मरतबा पढ़ना है और अपना मकसद ज़हन में रखना है। मिसाल के तौर पर आप बेटी बेटे की शादी के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो मकसद को ज़हन में रखें। आप कारोबार के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, मकसद को ज़हन में रखें। आप अपनी जॉब पक्की करने के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, उस मकसद को ज़हन में रखें। आप अपने कारोबार को मज़ीद बामे उरूज पर ले जाना चाहते हैं तो उस मकसद को ज़हन में रखें। आप परेशानियों के हल के लिए पढ़ना चाहते हैं तो उस मकसद को अपने ज़हन में रखें। आप किसी से रिश्ता तलब करना चाह रहे हैं, शादी के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए, तो आप उस मकसद को ज़हन में रखें। कारोबार के लिए है, किसी मकसद के लिए है, मुकदमे से नजात के लिए है, मुकदमे से बरी होने के लिए है, तो आप उस मकसद को ज़हन में रखें और फिर अमल मुबारक को जारी रखें। और जब आप इस मकाम पर पहुंचे यब्तगूना मिन फदलिल्लाह, फिर आप 3 मरतबा पढ़ें। इसके बाद सूरह मुज़म्मिल शरीफ की आखिरी आयत पर जब आप पहुंचते हैं वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इस आयत को भी आपने 3 मरतबा पढ़ना है और अपने मकसद को, जायज़ मकसद को अपने ज़हन में रखते हुए इस तरह पढ़ने से बफज़ल ही ताला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम से इस फ़कीर की ये दुआ भी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका आमिल भी हूँ। अल्लाह ताला ने पीरो मुर्शद की नज़र अनायत से अल्हम्दुलिल्लाह इसका अमल अता फरमाया है। आप इंशाअल्लाह किसी भी हाजत के लिए पढ़ेंगे, आपकी हाजत पूरी होगी, आपका जायज़ मकसद पूरा होगा, आपकी जायज़ तमन्ना पूरी होगी, जायज़ ख्वाहिश पूरी होगी। अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी को आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी को आपने लाजमन पढ़ना है। ये अमल एक ही दिन का है
اگر ایک بار آپ نے کر لیا، مقصد پورا نہ ہوا، تو آپ اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کام میں کامیاب نہیں ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس وظیفہ مبارک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، واٹس ایپ پہ آپ بھیجیں، فیس بک پہ لگائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، تاکہ کر بھلا ہو بھلا، ہوگا بھلے کا بھلا۔